Good morning, friends. Myself, Dr. Rajiv Gupta. I am taking a lecture series on the topic of paper solution of organic chemistry exam papers of Sardar Patel University. This is the part 3 of this 2018 regular paper lecture series. The paper is organic chemistry first and its paper code is PS01 CCHE22. So some questions we have already discussed in this paper. Now we come to this question. Designate conformations of normal butane by using Klein-Prelog terminology. So in this question we have to draw Newman's projection of normal butane with various conformations. The conformations which are termed in Klein-Prelog terminology. In Klein-Prelog terminology there are various terms like syn-periplanar, synclinal, anticlinal, anti-periplanar. So these are the Klein-Prelog terminologies for various conformations of these type of compounds. So in normal butane, first of all we can draw a fully eclipsed conformation. In fully eclipsed conformation we can put both the methyl groups with 0 degree dihedral angle, and the front and back carbon atom in this Newman's projection is the second number and third number carbon atom of the normal butane. So this conformation where dihedral angle is 0 degree, or we can say the dihedral angle is 360 degree. This angle is 0 degree, but if we say this complete angle, this is 360 degree. So for this conformation we will designate the Klein-Prelog terminology as syn-periplanar. ठीक है, यहाँ पर हम syn-periplanar conformation असाइन करेंगे, इसको नाम देंगे syn-periplanar. syn मीन्स कि ये दोनों की दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स के बीच में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, ये दोनों की दोनों सेम पोजीशन पे हैं, यानी कि दोनों सेम साइड में हैं, एग्जैक्टली सेम साइड में हैं. पेरीप्लेनर मीन्स दोनों की दोनों सेम प्लेन में है. अगर हम यहाँ से एक प्लेन अप्लाई करें, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, तो ये जो प्लेन है इसके अंदर दोनों की दोनों मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं, तो दीज आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में सिचुएटेड हैं. सो दीज आर पेरीप्लेनर and the dihedral angle is 0, so it is syn periplanar. Now when we move one methyl group and fix the other methyl group, or we can say that if we made a rotation in carbon-carbon single bond by 160 degree, we get this second conformation, which is a one type of staggered conformation, a Gaussian conformation, where the dihedral angle between these two methyl groups are 60 degree. Or if we go from this side to this side, so it is 300 degree. So the minimum angle we will choose preferentially, so it is 60 degree. So it is a Gaussian conformation where it is termed as synclinal. The Klein-Prelog terminology is synclinal. Now again we move this carbon-carbon single bond by 60 degree. Now we get this third conformation. यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है वो 120 डिग्री हो गया है, या अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, यहाँ से देखें तो ये 240 डिग्री है. तो आप इस साइड से देखें, इस साइड से, तो डाइहेड्रल एंगल हमको ये मिलेंगे. इसके लिए Klein-Prelog टर्मिनोलॉजी आएगा एंटी-क्लाइनल. ओके, this is a eclipsed conformation. Eclipsed, how it is eclipsed? The methyl group and hydrogen atom have 0 degree dihedral angle. Here also methyl and hydrogen have 0 degree dihedral angle, and these both hydrogen atoms have 0 degree dihedral angle. So
it is a eclipsed conformation. Okay, now it is termed as anticlinal. Anticlinal. Now we again move this to this conformation, 60-degree rotation. Now see, the diagonal becomes 180 degree. ओके 180 डिग्री हो गया डायहेड्रल एंगल. तो यहाँ पर दिस इज फुल्ली स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर दोनों की दोनों बल्कि मिथाइल ग्रुप्स एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं, एंटी मैनर में हैं. ओके, इसके लिए हम क्लाइनपिलॉट टर्मिनोलॉजी असाइन करते हैं एंटी पेरी प्लेनर. ओके, दिस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंटी पेरी प्लेनर. नाउ वी मूव अगेन 60 degree. Now the dihedral becomes 240 degree from this side, and if we consider from this side, this is 120 degree. Now see, the combination is same, 240 120. Here 120 240 means both the conformations are actually have the same energy. Okay, both have same energy, and both are same type of configuration. So it is also again called as anticlinal. In Klein-Pillock terminology, it is anticlinal. It was also anticlinal. It is also anticlinal. Now, again we move 60 degree. Now the dihedral angle becomes 300 degree. Or if we move from this side, it is 60 degree. Now, again this is a Gaussian form, and it is termed as synclinal. So this is similar to this. Synclinal. Okay, so all these are the different conformations of normal butane, and their Klein-Pillock terms are shown with them. Okay, now next question, comment on the mechanism of nitration of benzene using primary kinetic isotope effect. तो ये क्वेश्चन 4th यूनिट से रिलेटेड है, जो कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो बेंजीन का नाइट्रेशन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन का अगर जब नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज अ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वी नो वेरी वेल, इस चीज बात को हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमको ये बताना है कि जो ये मैकेनिज्म हमने जो इसका दिया है, हमको पता होना चाहिए कि उसका मैकेनिज्म क्या है. वो मैकेनिज्म जो दिया गया है उसको हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का यूज़ करते हुए कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसको कंफर्म कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसमें यही मैकेनिज्म फॉलो होता है. और मैकेनिज्म इसमें कौन सा फॉलो होता है वो हमको पता है कि मैकेनिज्म में 2 स्टेप आते हैं. फर्स्ट स्टेप में जो बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन एटम है वो एज H+ आयन वहाँ से रिमूव होता है और व्हीलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म में वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है. उस एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एक इंटरमीडिएट बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टेबलाइज होता है. और उसके बाद में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इस व्हीलैंड इंटरमीडिएट पे सॉरी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बोल दिया. फर्स्ट स्टेप इज एडिशन स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज एलिमिनेशन स्टेप. फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेशन में जो नाइट्रोनियम आयन है NO2+, दैट नाइट्रोनियम आयन वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल. दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग और एनी एरोमेटिक सिस्टम एंड इट फॉर्म्स व्हीलैंड इंटरमीडिएट. Okay, first of all it forms व्हीलैंड intermediate. Now in second step, on which carbon atom the nitronium ion was attached, on that carbon atom the hydrogen atom will be removed as H+ ion. So this second step is a elimination step. So combinedly we can say it is a substitution. Overall it is a substitution reaction where in first step addition takes place and in second step elimination takes place. Addition of electrophile and elimination of H+ ion. So this mechanism could be confirmed by this primary kinetic isotope effect. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या है.
दो टाइप के आइसोटॉप इफेक्ट होते हैं, प्राइमरी काइनेटिक एंड सेकेंडरी काइनेटिक, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्राइमरी काइनेटिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट। रेट चेंज ड्यू टू आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर आइसोटॉप टर्म आ रहा है, मीन्स हम किसी एटम का आइसोटॉप यहाँ पे यूज करेंगे। रेट चेंज, रेट मीन्स द रिएक्शन रेट, दिस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन रेट we can say in this case. Rate change due to isotope substitution at a site of bond breaking or bond making in the rate determining step of a mechanism. As we know very well that the rate of a reaction depends on the slowest step of a mechanism, a step which has which occurs very slow. On that step our reaction rate depends. So जब यहाँ पर हम किसी रिएक्शन में अगर कोई एटम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन एनी सब्स्टिट्यूएंट, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किसमें? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली उस स्टेप में अगर हम आइसोटॉप का यूज करते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फॉर्म हो रहा है किनके बीच में? दो एटम्स के बीच में। उन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम को उसके आइसोटॉप से रिप्लेस करके उसके बाद में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमको रिएक्शन के रेट में चेंज मिलेगा, रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आइसोटॉप सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस है वो जनरली स्लो या फास्ट हो जाता है। उसके बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ हमको ऐसा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है या उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो ऑब्वियसली डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसको यूज़ करते हुए हमको बताना है कि व्हाट इज़ हाउ वी कैन से अबाउट मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है वो तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इन फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल एडिशन टेक्स प्लेस इन बेंजीन रिंग एंड इन सेकंड स्टेप हाइड्रोजन एटम रिमूव्स फ्रॉम द एडिशन साइट। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? पहले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन कार्बन एटम, ओके, कार्बन एटम एंड कार्बन एटम किसका? बेंजीन रिंग का। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम है, उनमें से कोई एक कार्बन एटम, उस कार्बन एटम का, और यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज नाइट्रोनियम आयन NO2+। तो NO2+ और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि ये वाला स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, जो फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये जो दोनों के दोनों स्टेप है, जिसमें पहले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, वो हमको पता करना है कि कौन सा वो स्टेप है जो एक्चुअल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इन दोनों के अंदर, जो कि रिएक्शन रेट को सीधे सीधे कंट्रोल करता है। ओके, और बाकी ये सब ये रिएक्शन कंडीशंस बताई गई हैं। रिएक्शन कंडीशन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर यूज़ किया जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन में। ओके, बाकी ये सब प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम बेंजीन की जगह ड्यूटीरिएटेड बेंजीन यूज़ करते हैं, ओके, बेंजीन की जगह ड्यूटीरिएटेड बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C6H6, और ड्यूटीरिएटेड बेंजीन का क्या होगा? C6D6, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह ड्यूटीरियम आइसोटॉप आ गया। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन या कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो, उनमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है या वो प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाता है। तो जनरली मैं यहाँ बता देता हूँ कि जनरली कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड उतना इजीली ब्रेक नहीं होता। ओके, तो मीनिंग क्या निकलेगा? देखिए यहाँ पर इसको समराइज कर दिया है कि इफ़ वी यूज़ नॉर्मल बेंजीन
then nitrobenzene formation takes place, nitration reaction, nitrobenzene. Now in this case the rate is H, rate H. Suppose rate of reaction is rate H. Now if we use, in place of normal benzene we use deuterated benzene, now what we get, C6D5NO2. now in this case, in this reaction the rate is rate D. ओके, नाउ ऑब्जर्व किया गया, प्रैक्टिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्मल बेंजीन के केस में जो रेट मिलता है और ड्यूटीरेटेड बेंजीन के केस में जो रेट मिलता है वो दोनों रिएक्शन रेट सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है, विच इज सेकंड स्टेप, विच इज एलिमिनेशन स्टेप, इट इज़ नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो एक्चुअल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इस मैकेनिज्म में कौन सा होगा, जो कि पहला स्टेप है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why benzene gives deuterobenzene in presence of DCl oblique AlCl3 but not the product of addition? So I will discuss this question in next lecture. Thank you for listening the lecture.